Hello everyone, hello dear students. Now we have to start chapter 7, subject GK. We have discussed chapter number 39 as chapter number 12 in class for copy, and now we have to discuss chapter number 40. So, chapter number 40 is body mania and mania. What is mania? Mania is can be a disorder also, excitement also, enthusiastic also. It's depend on the happening which occur in our body. Okay, so now how you have to do this question? Put a question, fill in the blank. Okay, all it can be asked, question can be formed in any form. Name the following, true, false, or it can ask in any form, matching. If any form question can be asked, you should know how to attempt the question. If it is asked in any form, answer will be same for every type of question. Okay, so first question is, in copy you will write in the form of question number 1, you will put and you will write fill in the blanks, name the following, or true, false. Now question number 1 is the largest gland in the human body. हमारे human body में जो सबसे largest gland होता है, the name of the largest gland is liver. Okay, second, the heartbeat of a normal person की जो heart beat होती है, the ranges from 70 to 75 beats per minute. जो नॉर्मल पर्सन की हार्ट बीट होती है उस क्या रेंज होती है उसकी 70 to 75 बीट्स पर मिनट. एक मिनट में 1 मिनट में 70 to 75 बीट्स. ओके, this you have to remember because these are the general question. The normal temperature of the human body, you all know that what is the normal temperature of the human body? 98.6 degree Fahrenheit, and in the form of Celsius 37 degree Celsius. Okay, and if you are having the temperature more than this, it means you are suffering from the fever. Fourth, vessel that carry blood from the heart to the different parts of the body are arteries. As you all know, we are in our body, we have vessels, and that vessel that carry the blood, जो blood आपको heart से आपके सारे body parts of the body में supply करेगा, that is known as, that name of the vessels is known as a arteries. That is known as a arteries. Okay, now fifth one is vessel that carry blood. Vessel that carry blood from different parts of the heart. Different parts of the heart, वो vessel जो blood carry करेंगे कहाँ से? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट से, सारे हार्ट से कलेक्ट करेगा ब्लड को, दैट इज नोन एज वेन्स. यहाँ आपको मिस प्रिंट दिखाई नहीं दे रहा, आंसर इज वेन्स. आप लिख सकते हैं आंसर क्या है इसका? वेन्स. ओके, आंसर इज वेन्स. Come on, next one is the glands that produce the hormones, also called brain chemical messengers. वो glands जो produce करेंगे हार्मोन्स को और जिन्हें we also call that hormones as brain chemical messenger. हम उन्हें brain का chemical messenger भी बोलते हैं, जिससे आपके messages वन पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट पे जाते हैं. ब्रेन से आपको सेंसरी या मोटर नर्व्स पे जाते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो वो ग्लैंड्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को, एंड दैट दे आर ऑल्सो नोन एज ब्रेन केमिकल मैसेंजर. ओके. 7, the organ that filters the nitrogenous waste of the body. वो ऑर्गन जो आपके फिल्टर करेगा, सेपरेट करेगा नाइट्रोजीनियस वेस्ट ऑफ द बॉडी, जो आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट है, ओके, उसे सेपरेट करेगा. कहाँ से? ब्लड से. और वो कहाँ एक्सक्रीट करेगा? जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है जो ब्लड में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है, वेन एवर यू टेक अ फूड देन इन स्टोमक इट गेट डाइजेस्टेड एंड इन small intestine and then in large intestine, and after digestion process get completed, then the material which is the waste, it can be excreted in the form of urine. then कहाँ किस organ में filter होता है nitrogenous waste आपका body का blood से और फिर excrete होता है urine की form में, that organ name is kidney. Okay, next, thread like parts of the nervous system. Thread like parts of the nervous system that carry feelings and messages to and fro from the brain are nerves. वो thread
थ्रेड लाइक पार्ट्स होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारा थ्रेड लाइक पार्ट्स होते हैं वो, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, थ्रेड लाइक पार्ट्स होते हैं, जिसमें फीलिंग्स होती हैं, आपकी मैसेजेस होती हैं जो आपकी ब्रेन तक जाती हैं, ब्रेन से जाती हैं, उन्हें बोलते हैं नर्व्स। जो सेंसरी नर्व्स, स्मॉल मोटर नर्व्स जिसका रोल प्ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट द ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस इंसुलिन, वो ऑर्गन जो इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, और इंसुलिन यू नो दैट कीप द शुगर लेवल बैलेंस इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में बैलेंस करके रखता है शुगर के लेवल को, एंड दैट ऑर्गन दैट प्रोड्यूस इंसुलिन, और इंसुलिन का काम होता है टू कीप शुगर लेवल बैलेंस, ठीक है। सो कौन सा ऑर्गन है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियास, दैट इज अ पैनक्रियास। 10. The hard bony case that protect the brain is the skull. वो हार्ड आपका बोनी केस जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, जिसमें आपके सारे इंटरनल हेड के ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज़ अ स्कल। स्कल के अंदर है आपका, दिस इज द स्कल। स्कल यू नो आपका जो स्कल है, स्कल में आपके सारे इंटरनल ऑर्गन आपके हेड के प्रोटेक्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट द ऑर्गन कंसिडर्ड एज अ ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, जो आपका ऑर्गन ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहलाता है, दैट इज अ स्प्लीन। इट मीन स्प्लीन ऑर्गन इज कंसिडर्ड एज अ ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कौन से ऑर्गन को कंसिडर करते हैं, दैट इज अ स्प्लीन। ओके, 12. द मसल्स दैट कॉज द मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, वो मसल जो हमारे इंटरनल ऑर्गन ऑफ कि जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है उसका मूवमेंट कॉज करेगा, एंड आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ विल, और जो हमारे विल में हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि आपके कौन कौन से वॉलेंटरी मसल्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप बताइए, आपका अगर आपकी हार्ट बीट चल रही है, ठीक है, आपकी डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन फंक्शन कर रहा है, तो ये सारी क्या आपके फंक्शन आपके कंट्रोल में है, कंट्रोल में है ये आपके, तो ये आपका क्या है, दैट मसल्स दैट कॉज द मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ विल, आर को ये इनवॉलेंट्री, आप इसे इनवॉलेंट्री कर लीजिए, ठीक है, आप इसे क्या कर लिए, इनवॉलेंट्री, क्योंकि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते उन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, और जो हमारे कंट्रोल में होते हैं हम उसे वॉलेंट्री कहते हैं। और यहाँ पूछा है वो मसल जो कॉज करता है मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड आर नॉट इन अवर कंट्रोल, जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी इंटरनल ऑर्गन है उनका मूवमेंट करता है, उनका फंक्शन करता है और हमारे कंट्रोल में नहीं होता, उन्हें कहते हैं इनवॉलेंट्री। तो ये इनवॉलेंट्री कर लीजिए आप, वॉलेंट्री तो उन्हें कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, अगर आप अपने आईज को ब्लिंक करेंगे तो वो आपके कंट्रोल में ब्लिंक कर सकते हैं, हम नहीं भी कर सकते। यस, सो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है दैट इज नोन एज इनवॉलेंट्री मसल्स, तो आप इसे इनवॉलेंट्री कर लीजिए, दैट इज द इनवॉलेंट्री मसल्स। इज इट क्लियर? Okay, so here we have completed our chapter number 40 also. Okay, and chapter number 40 cut it and put a chapter number 13 in your copy. आप इसे serial number क्या डालेंगे, आप इसका serial number डालेंगे 13 copy में. Is it clear? So here we have completed chapter number 40 also. Thank you.